चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर reduces nitrate into NO nitric oxide and NO2 nitrogen dioxide depending upon concentration of HNO3 in solution. Yes. Assuming cupric is 0.1 molar and pressure of NO and NO2 both 10 raised to minus 3 bar, at which concentration of HNO3 thermodynamic tendency for reduction of nitrate into NO and NO2 by copper is same. और okay. E नॉट वैल्यूज दिया है। दोनों के E के वैल्यू सेम होना चाहिए ना। वेरी गुड। Thermodynamic tendency for reduction of nitrate into NO and NO2 by copper is same, meaning the delta G for both the process should be equal. Now if delta G is equal, delta G equal to minus NFE say, if you relate, then E of both the processes should be equated. दो processes हमको देखने हैं. If you are able to understand, this is the reaction of copper with nitric acid. And when copper reacts with nitric acid, there were three different cases. Yes, sir. Concentrated nitric acid, dilute nitric acid, and very dilute nitric acid. So if it is concentrated nitric acid, we get NO and 2. Concentrated, we get NO2. So dilute will give NO, and very dilute will give N2O. So now here they are talking about nitric acid concentrated and dilute, which is giving NO and NO2. ठीक है? So let's write the reaction to understand. Okay. So first of all, copper is reacted with the nitrate ion, and nitrate is reduced to NO2, and copper will be oxidized to copper plus 2. Okay. Now, is this a balanced reaction? No sir, चार्ज बैलेंस होना चाहिए. तो अब यहाँ पर रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट लगाकर हम चार्ज बैलेंसिंग के थ्रू इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं. सो कॉपर 2NO3 आएगा ना. पहले तो इलेक्ट्रॉन ही डालना, पहले तो इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली रिडॉक्स के थ्रू भी कर सकते हो. अपना प्रोसेस क्या था? कॉपर 0 से +2, द इंक्रीज इज +2. नाइट्रेट का +5 इज चेंजिंग टू +4. नाइट्रोजन -1. सो अब -1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ. So main elements copper and nitrogen which are undergoing the change gets balanced. Next step, we have to balance the oxygen. So on the left you have 6 oxygen. 6 and on the right you have 2. मतलब add. Sir 4 है right का, तो you have to add only 2. हाँ, so left पे 6 है, right पे 4 है, मतलब twice of H2O add कर देंगे. After that balance the H plus. So left पे कुछ भी नहीं है, 4H+. so you will be adding 4H+. ठीक है. अब देखते हैं चार्ज टोटल 0, -2 and +4. +2 हो रहा है, and on the right +2, 0 and 0. मतलब reaction is balanced in terms of atoms as well as charges. ठीक है. So now E of this particular process will be equal to E naught. So 1 second. How did you get 2H2O on the right? Oxygen on the left was 6 and on the right was 4. Okay. Yeah, So twice H2O, फिर hydrogen 4 है तो 4H plus add कर दो. हाँ वो आ गया. ठीक है. अब E of the cell will be equal to E naught of the cathode minus the anode. अब यहाँ पर cathode कौन सा है? Nitrate. So उसका दिया हुआ है NO3 minus / NO2 वाला वैल्यू, और एनोड जो है वो Cu+2/Cu वाला रहेगा, minus 0.06 upon 2. Now the charge transfer is 2. ठीक है, into log to the base 10. अब यहाँ पे
प्रोडक्ट साइड पे क्या क्या है? Cu NO2 U plus 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 जिसकी वैल्यू दी है NO2 इनटू का पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 NO2 का का NO2 का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, H2O इग्नोर करेंगे, कॉपर कॉन्सेंट्रेट सॉल्व ऑफ करेंगे, और NO3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनस नाइट्रेट का स्क्वायर नाइट्रेट का स्क्वायर एंड H प्लस का H रेज plus टू 4। 4 ठीक है, अब पीछे जाके वैल्यू देखते हैं। नाइट्रेट इंटू NO2 का वैल्यू 0.79 दिया है। ओके, नाइट्रेट ये वाला वैल्यू ना, दिस वन। ठीक है हाँ हाँ 0.79 minus 0.34 So this will be equivalent to 0.79 minus 0.34 0.45 minus 0.06 by 2। ये 10 पावर -1 दिया है 0.1 मोलार और ये 10⁻³ दिया है। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 10 पावर -7 हो जाएगा ना। अपने को HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। सो HNO3 will break down into H plus H plus and NO3 minus. So let the concentration of this be C. तो इसका भी C रहेगा और इसका भी C रहेगा। okay हाँ If the concentration of nitric acid is C, then H plus and NO3 minus will have same concentration. Yes, So can I directly C raised to 6 write over here C raised to 6 and this is what we have to find. yeah ठीक है, तो ये E of the cell for the first process है। ठीक है, अब सिमिलरली हम सेकेंड प्रोसेस को रिलेट कर लेंगे। तो सेकेंड में क्या हो रहा है, कॉपर इज रिएक्टिंग विथ नाइट्रेट एंड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू क्यूप्रिक एंड नाइट्रेट का NO मिल रहा है। वापस यहाँ पे 0 से +2 इंक्रीज +2 का है, नाइट्रेट का +5 से लेकर +2 डिक्रीज -3 का है। तो 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, मतलब plus 4H2O 4H2O और फिर plus 8H plus हाइड्रोजन 8 हो जाएगा तो 8H प्लस। चार्ज देख लो 0, यहाँ पे -2, यहाँ +8 +6 हो गया, यहाँ पे +6 0 0। चार्ज बैलेंस है, मतलब परफेक्ट बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, अब E of the cell for this process, let's say ये सेकेंड प्रोसेस है हमारा and that is equal to 0.96 दिया हुआ है वैल्यू इसका, माइनस 0.34 माइनस 0.06 अपॉन n फैक्टर क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 किया ना, डायरेक्टली वहीं से मिल जाएगा, इनटू log to the base 10। इसका क्यूब हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁻⁻1 का क्यूब -3 और ये -3 दिया हुआ है उसका स्क्वायर -6, डायरेक्ट लिखो -10⁻⁻9 ना, 9 -1 का क्यूब एंड -3 का स्क्वायर और टोटल -9 हो जाएगा अपॉन, ये तो कुछ नहीं है, इसका C स्क्वायर और इसका C raised to 8, मतलब C raised to 10। क्लियर? सो ये अपना इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। At what concentration of HNO3 यानी C, the thermodynamic tendency of these two processes would be same। हाँ सर, तो फिर तो खाली मिल जाएगा, इक्वेट करना है। हाँ, बस अभी इक्वेट करके आपको सॉल्व करना है। इसका थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, वो करना पड़ेगा। सो E1 is equal to E2। अब E1 के लिए सॉल्व किया, 0.79 minus 0.34 comes out to be 0.45 minus 0.03 into log to the base 10 n power -7 upon C raised to 6 equals to, this comes out to be 0.6 and 2 minus 0.01
into log to the base 10 power minus 9 upon c raised to। बस अभी log वाले एक साइड पे ले लो, नॉन लॉग वाले। अब जब log वाला एक साइड लेंगे तो यहाँ पे 0.10 0.03 है और यहाँ 0.01 है, तो आप कॉमन कैसे लोगे log के फैक्टर को? तो एक तरफ आएगा अपना 0.01 into log to the base 10 raised to minus 9 minus 9 10 upon 9 c raised to 10 था, राइट? 10 और minus 0.03 into log to the base 10 power minus 7 था और c raised to 6 था, और यहाँ 0.17 आता है डिफरेंस, राइट? हाँ सर, अभी log को कर दो -9 माइनस 10 log c। हाँ, अभी log को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इजी हो मल्टीप्लाई जाएगा। 100 कर लो, हाँ, 100 कर के दो, मल्टीप्लाई कर दो और 3 को फिर ऊपर ले लो और फिर डिवाइड कर दो log को। सो हाँ। ये 0.01 उड़ जाएगा, यहाँ पे आएगा 10 power minus 9 upon c raised to 10 माइनस log of 10 power minus 7 upon c raised to 6 का क्यूब इक्वल टू 17 हो जाएगा। अब लॉग्स डिवाइड हो जाएंगे, हाँ तो अभी डिवाइड कर तो दो। 10 पावर minus 9 अपॉन c raised to 10 और ये हो जाएगा c raised to 18 अपॉन 10 पावर 18 upon minus 10 raised to minus 21 21। और ये 17, ठीक है। अब 10 के पावर्स को रिलेट कर लेंगे तो कितना आ रहा है? log of 10 raised to 12 into c raised to 8 into c c raised to 8 इक्वल टू। हाँ अभी log a plus log b कर दो सर, log a plus log b कर दो। नहीं, जरूरत नहीं है ना, 10 raised to 17 कर लेता हूँ सीधा राइट हैंड साइड। हाँ 10 पावर 17 इधर ना, हाँ सर, 10 raised to 5 is c raised to 8 हो जाएगा 10 raised to 5, मतलब c will be equal to 10 raised to 5 by 8। हाँ ये कहाँ से करना है? जीरो अच्छा अच्छा वैसे ही दिया है, ओके। 6.25 आता है एक्चुअली। आई थिंक वो दैट इज बिकॉज ऑफ 0.06 का अप्रोक्सीमेशन। प्रॉब्लम में दिया है 0.06। हाँ दिया है, पर ऑप्शंस में 0.66 ही दिया है। हाँ ठीक है, हाँ 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 वो देख लेंगे। 10 raised to 1.23, 0.56, 0.66 और 0.12। क्लोजेस्ट आंसर 0.66 है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना सर इसमें, 56 या 66 थोड़ा सिमिलर, मतलब नहीं इतना फर्क तो नहीं आएगा। 0.6 के आगे सेकंड डिजिट में वेरिएशन आ सकता है, फर्स्ट डिजिट तो 0.6 आएगा ही। अच्छा ठीक है। 0.56 एंड 0.66 में डिफरेंस काफी ह्यूज है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। ऑलरेडी वैल्यूज छोटी है ना, तो उसमें इतना बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा। ओके सर, ठीक है, बट इट वाज अ गुड क्वेश्चन इन रिगार्ड्स टू फर्स्ट राइटिंग द रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ, देन राइटिंग द नर्स्ट इक्वेशन and equating the EMS. वेरी लेंदी सर। हाँ लेंदी है। Next one, a radioactive material with T-half 30 days gets spilled over the floor of a room. अरे ये बहुत बार है। हाँ सर If किया है। initial activity is 10 times the permissible value, after how many days will it be safe to enter the room? 1/10 is equal to e raised to minus lambda t। E वाला क्यों फॉर्मूला यूज करना है? क्या E वाला फॉर्मूला क्यों यूज करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हाँ डायरेक्ट मतलब हाफ रेस्ट टू n वाला भी है, हाफ रेस्ट टू n भी कर सकते हैं। हाँ हाँ अभी इनिशियल एक्टिविटी 10 टाइम्स ऑफ द परमिसिबल वैल्यू, मतलब a नॉट का वैल्यू कितना लेना है? तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं ना। नहीं मुझे बताओ, इनिशियल एक्टिविटी 10 टाइम्स द परमिसिबल वैल्यू का मतलब क्या है? हेलो, इनिशियल n नॉट है तो फाइनल n नॉट बाय 10 होना चाहिए। हाँ वही ना सर, 1/10 is equal to e raised to minus lambda t, वही होगा ना। हाँ, या तो फिर सर थोड़ा इसके अंदर ऑप्शंस है तो अपन अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं ना। जरूरत ही नहीं, अगर आपको a नॉट 80 पता है तो सीधा आप फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन यूज करोगे ना। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन तो बोल रहा हूँ। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज ऑलवेज डिफिकल्ट। हाँ पर सर देखो ऐसे, मतलब वही अभी देखो t और t हाफ का एक डायरेक्ट रिलेशन दिया है, अगर आपको तो डायरेक्टली याद है तो। बाद में लो। हाँ बाद में लॉग कर 10/3 वाला बहुत सिंपल हो जाता है ये। log n naught by 80 log n नॉट बाई nt
ठीक है, तो इनिशियल जो है वो 10 टाइम्स ऑफ द परमिसिबल वैल्यू है, तो लेट्स से परमिसिबल वैल्यू NT है, तो N0 10 टाइम्स हो जाएगा उसका, 1 यानी 300 सिंपली का। N0 by NT का रेशियो कितना हो जाएगा? 1 10 तो 10 10, हाँ तो log 10 is और 1 log 10 1 हो log 10 जाएगा 1 हाँ बस। 300 सो T अपॉन T half 30 नहीं दिया है सॉरी इक्वल टू 10 by 100 3, तो T सीधा आ गया 100 days. 100 days हाँ sure So don't go for the exponential form and then apply the log, it is time waste. ये वाला रेडियो एक्टिव के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का डायरेक्ट इक्वेशन है ना, जस्ट रिमेंबर T by T half is 10 by 3 log of A0 by AT या A0 by NT. ठीक है, इसमें सो सर 10 टाइम्स approximation भी परमिसिबल कर वैल्यू सकते हैं तो मतलब मतलब N0 by NT का जो रेशियो है वो 10 टाइम्स है, दैट इज द ओनली थिंग इम्पोर्टेंट। हाँ खुश क्या? नहीं, मैं तो खाली बोल रहा था सपोज अपने को मालूम है कि एक हाफ लाइफ में आधा होता है, 3 हाफ लाइफ में 1/8 होता है, तो 1/10 अप्रोक्सीमेटली 90 से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। हाँ मैंने तो वैसे किया तो 100 आ गया। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके, हाँ फॉर्मूला है तो हाँ डायरेक्ट सर हाँ आंसर मिल ही फॉर्मूला है जाएगा। तो ठीक है सर। नेक्स्ट we have a diazonium chloride substituted with 3 nitro at ortho and para plus इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन विद 3 मिथाइल xylene क्रिस्टॉल नहीं xylene is 2 methyl xylene नहीं xylene is 2 methyl okay मेसिटिलीन हाँ सॉरी टोलुइन फिर xylene फिर मेसिटिलीन, that is how you remember. हाँ ये कीटोन के साथ कीटोन के मेसिटाइल ऑक्साइड कीटोन का कीटोन का वो अल्डोल कीटोन का वो अरे, H2SO4 एसीटोन का अल्डोल नहीं, एसीटोन नहीं, का अरे अल्डोल नहीं नहीं वो वो मेसिटाइल ऑक्साइड बनता है। हाँ एसीटोन विद हाँ H2SO4 मेसिटाइल ऑक्साइड हाँ H2SO4 वाला रिएक्शन, हाँ ड्राई H2SO4 के साथ हाँ, और एक HCl वाला था HCl के साथ वो बनता है फोरोन फोरॉन, करेक्ट। हाँ ठीक है, सो वी हैव अ डायजोनियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद मेसिटिलीन, तो ये अजो कपलिंग रिएक्शन है जहाँ पे N डबल बॉन्ड N आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में अजो लिंकेज दिख रहा है, बी में बाइफिनाइल लिंकेज है, नहीं होगा ना वो सो बोथ इन इक्वल प्रोपोर्शंस या कपलिंग फेल्स? कपलिंग होगा कि नहीं होगा? और हिंड्रेंस आएगा क्या हाँ कुछ हिंड्रेंस आएगा क्या इसके अंदर हमको तो वही कपलिंग फेज लग रहा है। अच्छा मुझे बताओ कपलिंग के लिए तो नहीं जो, लग रहा है मेरे को सर बी या सी नहीं लग रहा है। हाँ मुझे बताओ कपलिंग के लिए जो सामने वाला रिएजेंट है उसका कंडीशन क्या था? EDG EDG सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होना चाहिए ना, because only benzene हाँ, sir. is not that electron rich, but EDG substituted ring will be more electron rich. So if it is more electron Yeah, rich, that's it will why be phenol easily do attacked react. by, it will be easily अच्छा, attacked N2 by plus. N2 plus, which acts as the diazonium. electrophile in this case. या तो होगा बराबर, तो यहाँ पे xylene तो एक अच्छा हाँ, sir. reagent है ना कपलिंग के लिए, हाँ yes or no? यस EDG यहाँ पे कपलिंग होगा, कपलिंग और होगा कपलिंग कहाँ होगा? ऑब्वियसली पैरा ये- पोजीशन पे, ठीक है, तो हाँ, पैरा हाँ। पोजीशन पे अगर हाँ। होगा तो उसके आजू बाजू 2 मिथाइल और सामने मिथाइल होगा, और वैसे ही कपल होने के बाद यहाँ ए- 2 ए नाइट्रो और सर, हमने ए सॉरी सामने नाइट्रो होगा, तो आंसर ए करेक्ट है, और ये अजो कपलिंग का केस है। सर एक सेकंड इस तरह से अजो कपलिंग होता है ना, अगर यहाँ पे हम बेंजीन रख देते हैं, ठीक है, तो हमारा आपत वाला जो रिएजेंट्स है दे एक्ट एज गुड हाँ सर रिएजेंट्स। फिनॉल यहाँ पे आल्सो रिएक्शन फिनॉल हाँ आल्सो आपत मतलब एनिलीन, फिनॉल, एनिसॉल, ये सब अच्छे रिएजेंट्स हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रोफाइल की का काम करता है, एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल. So benzene is not a good nucleophile. To make it a good nucleophile, we can have the substituted plus R groups.
सो अब यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा एंड फाइनली कपलिंग होकर N डबल बॉन्ड N का लिंकेज यहाँ प्रोड्यूस होगा. द आंसर इज A. ओके. ठीक है. Next, there is a ketone with 2 bromo substituted on the adjacent positions. A mixture of all possible stereoisomers from the above structure is subjected to fractional distillation. Which of the following statement is correct? Possible stereoisomers. Can you think of stereoisomers for the structure given? 2:n ना cis trans sir. हाँ. 2:n ना. cis trans. अच्छा, ज्योमेट्रिकल होगा क्या सबसे पहले? होगा सर. नहीं, ट्रांस सब्स्टिट्यूटेड है. हो सकता है सर. होगा ना सर, साइकिल रिंग में होता तो है. 1 2 पे हो सकता है, 1 3 पे हो सकता है और 1 4 पे हो सकता है, प्रोवाइडेड द ग्रुप्स आर डिफरेंट. तो यहाँ पे तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएगा ना. क्या ज्योमेट्रिक ना, वो स्टीरियो स्ट्रक्चरल हुआ ना, आइसोमर हो जाए. स्टीरियो हुआ ना. स्टीरियो. अरे कौन सा HBr. सर? अभी यहाँ पे रिंग पे जब हम करते हैं रिंग, कंसीडर, so I can have the attachment as H with a Br and यहाँ अच्छा, पे हाँ, third ये, position हाँ, H with a ठीक है, Br. ऐसा वाला. ये कीटोन है अपना यहाँ हाँ, पर, वही सिस ट्रांस सर. हाँ सर. है ना. हाँ सर. तो 3 GI होंगे ना. ये अपना सिस हो गया, फिर इसका ट्रांस होगा विद द Br ऑन द ट्रांस होगा ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड. सर इसमें पहले- पोजीशन चेंज कर सकता है BR का. हाँ, तो वो भी गिना जाएगा ना. ये ना मैंने एक सिस आएगा एक ट्रांस आएगा. अरे वैसे नहीं, मतलब BR वो बाजू वाले कार्बन पे वो वाले कंसिडर नहीं करना ना, किधर किधर आ सकता है. नहीं, Compound स्ट्रक्चरल है, थोड़ी अच्छा. कंसिडर, यही स्ट्रक्चर फिक्स है. दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन. अब इसके Okay. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करनी है. ठीक है. सो ये सिस ट्रांस. अब सिस का अगर मिरर इमेज लिया तो कोई फर्क आएगा? नहीं, एक सेकंड सर. नहीं सर. फर्स्ट यू नहीं थिंक सर, ऑफ मुझे लगता है. GI देन OI. Then तो OI. GI में सिस और ट्रांस हुआ, फिर इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज कोई डिफर करेगा? नहीं सर, नहीं सर. और इसका मिरर इमेज भी सेम होगा. भी सेम होगा. नहीं सर, नहीं, ट्रांस का अलग होगा ना शायद. इसका मिरर इमेज अलग हो जाएगा ना. हाँ, तो 2 हाँ. OI हो जाएंगे, टोटल 3 होंगे. दूसरा, दिस इज ऑल्सो अल्फा कीटो एसिड. सॉरी, अल्फा कीटो कंपाउंड. तो इसमें यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट टॉटोमेरिज्म. हाँ सर, सॉरी. हाँ, टोटोमेरिज्म. मतलब देयर कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रक्चर इन विच इनोलिक कंपाउंड बनेगा. यहाँ पे OH डबल बॉन्ड Br एंड Br. ठीक है. अच्छा, कैन यू थिंक अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन दिस? यस सर. ये वाला जो कार्बन है, दिस इज कायरल. तो इसके हाँ. ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे which will be dextro and levo. ठीक है. so we can think So about all these also- structures. हाँ, सर टोटोमेरिज्म वाले स्ट्रक्चर के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आएगा ना, OH और Br वाले अलग अलग में. नहीं, डबल बॉन्ड के अक्रॉस डिफिकल्ट है. साइक्लोहेक्सीन वाले हाँ, sorry, साइक्लिक sorry, स्ट्रक्चर्स हाँ, नहीं हाँ. बताएंगे. हाँ सर. हाँ, sorry. साइक्लोहेक्सेन का 1 2 1 3 1 4 बता हाँ. सकता है. हाँ, साइक्लोहेक्सीन नहीं बताएगा. एट कोई- कार्बन वाला होगा. हाँ. So 2 fractions are obtained. Each fraction contains a pair of enantiomers.
two fractions are obtained. One fraction contains a single meso compound, another contains a pair of enantiomers. Three fractions are obtained. Each fraction contains a pair of enantiomers. Three fractions are obtained. Two fractions contain a single meso, and one fraction contain a pair of enantiomers. आप देखोगे तो यहाँ पर GI के रिलेटेड नहीं बात किया है, because they are talking about fractional distillation ना. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए सिस ट्रांस का सेपरेशन, इज इट पॉसिबल? नो सर. नो सर. बट OI में डिस्टिलेशन खाली उसके लिए होता है ना, डायस्टीरियोमर्स. हाँ, डायस्टीरियोमर्स. हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है. करेक्ट. So, but cis and trans both have different boiling points, na? So, fractional distillation में. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में there should be a large difference in the boiling point. अच्छा. तो बेसिकली यहाँ पे खाली ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्शंस अगर देखोगे तो सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, मीसो कंपाउंड या enantiomers. So we got how many fractions? Which ones we have to consider? अगर आप इस कंपाउंड को कंसिडर करो, आर देयर एनी OI पॉसिबल विद दिस स्ट्रक्चर? याद है वो ना, ये है ना ट्रांस का, अगर मैंने मिरर इमेज किया था कंसिडर, तो OI मिल रहा था ना. OI मिलता है. हाँ सर. बराबर. नाउ इफ दिस स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड, इज देयर अ सिमेट्री इन द कंपाउंड? इफ आई कंसिडर दिस कार्बन, इट इज कायरल एंड दिस कार्बन इज आल्सो कायरल. तो इस कार्बन से मैं लेफ्ट और राइट पे मूव करूं तो क्या आ रहा है? C डबल बॉन्ड हो, CH2, यहाँ से CH2 और सेंटर पे CH2 आ रहा है. ऐसे ही देखते हैं ना सिमेट्री. और इस कायरल कार्बन से C डबल बॉन्ड हो, CH2, यहाँ पे CH2 और वापस CH2. मतलब इफ यू कंसिडर आइदर ऑफ द कायरल कार्बन, वी आर गेटिंग अ सिमेट्री. सिमेट्री की वजह से क्या होगा? There is a symmetry, then हाँ, तो एक कम हो जाएगा ना. हाँ, मीसोमर हो जाएगा. एक मीसो कंपाउंड आएगा कि नहीं? हाँ, आ जाएगा सर. और दूसरा फ्रैक्शन जो इनॉल है, उसमें तो कोई मीसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक ही कायरल कार्बन है, तो उसके दो आइसोमर्स आएंगे, which will be डेक्स्ट्रो एंड लेवो. इक्वल प्रोपोर्शंस में बात करेंगे तो इट विल बी enantiomer. मतलब बेसिकली तीन फ्रैक्शंस, सॉरी दो फ्रैक्शंस होंगे. एक फ्रैक्शन ये मीसो कंपाउंड का होगा और दूसरा पेयर ऑफ enantiomer. तो मेसोमर्स का एक बार डेफिनेशन बोलो ना. मेसोमर देखो, ये वाला एग्जांपल टार्टरिक एसिड का हमने कंसीडर किया था. तो COH HOH SRRS HOH और COH. Now ये वाले स्ट्रक्चर में there is a plane of symmetry. So because of plane of symmetry, this structure will have identical mirror image. That is why we call this compound as a meso compound. और इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर बात करें, तीन ही होंगे. स्टीरियो आइसोमर्स वो तीन ही होंगे. टोटल स्ट्रक्चर्स 4 है, लेकिन 2 आइडेंटिकल हो जाएंगे. तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर 3 ही होंगे. ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे इनमें से? 2, क्योंकि मीसो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन. सो मीसो इज RS, नो? RS एंड SR. हाँ, RS एंड SR. और SS और RR they are enantiomers. Okay. If there is a pause, then SSRR will be enantiomers, RSSR will be meso. So diastereomers are which are not the mirror image. हाँ. तो एक फिक्स होना चाहिए उसमें और दूसरा वेरी करेगा तो डायस्टीरियोमर्स हो जाएगा. ये ट्रिक दिया था ना टार्टरिक एसिड के लिए. Yes. ठीक है. Okay. Next, which of the following about SF4, SOF4 and COF2 is correct? तो इसमें देखे हुए क्वेश्चन लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ तो देखे हैं सर. Okay. Equatorial FSF bond angle in SOF4 will be less than
in SF4 molecule. Hybridization state of sulfur in Hybridization. SF4 and SO4 will be different. हाँ Bond angle of FCO will be less than 120 in COF2 molecule. Axial FSF bond angle in SF4 is 180. तो तीनों के structures basically draw कर पहला लें. वाला SOF4 is sp3d, SF4 क्या होगा? SF4 4 4 bond BP pair हाँ, एक LP पाँच sp3d. अच्छा हो मैं OF4 की बात कर रहा हूँ SF4 दोनों में there will be 4 4 bond BP pairs and 1 lone Lone pairs. pair. So sp3d hybridization sp3d हाँ and seesaw. it will be a seesaw. 300 अच्छा, SOF4 SOF4 is इसमें also sp3d. सुनो 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 अब इसमें tell me how where the lone pair will be present in SF4 equatorial position or axial. sp3d में atoms को arrange करना Axial. बहुत important है. एक्शियल ना सर Equatorial पे होता है because the lone Equatorial pair पे should होता है. be as far As far as away as possible. possible. खाली वो तो- XGF6 के अंदर axial पे होता है ना. ये हो जाएगा अपना ऊपर रखने दो पे फ्लोरीन इन द सेम प्लेन विथ वन लोन पेयर एंड एक्सियल पोजीशन पे 2 फ्लोरीन. ठीक है, तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है, वो इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट SOF4 5 BP ना sp3d ये होगा. भी sp3d है और sp3d trigonal with but with a perfect Trigonal geometry मतलब ट्राइगोनल. मेरा आवाज आ रहा है क्या सर? हाँ अरे मैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड. अच्छा, अब इसमें दो डिफरेंट एटम्स हैं, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है. ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगा? एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे? इक्वेटोरियल ना सर. अब तुमको पता रहेगा तो हमने डिस्कस किया हुआ है PF2Cl2 वाला स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिड है. ये भी PCl5 जैसा. हाँ सर. तो अब इसमें CL arrangement कैसे इक्वेटोरियल. करते हैं? CL इक्वेटोरियल पे आएगा और F एक्सियल पे आएगा शायद. तो रूल क्या बोलता है? सिमिलर वाले एक साथ. नहीं नहीं, हाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले दूर होने चाहिए. हाँ, हाँ. more electronegative element should F- always occupy the हाँ तो axial F- position. सुनो सुनो एक मिनट, मैं रूल बताइए. ड्रैगोस रूल है, याद हो तो. हाँ सर. बेंट्स रूल और ड्रैगोस रूल बताया हुआ है. यस यस. तो उसमें जस्ट एक सिंपल चीज याद रखो, इन sp3d more electronegative element will be always present at axial position. क्योंकि more electronegative element जो है ना, that should have more of p character. More electronegative element will always occupy the orbital which has more p character. Justification बता दो आपको. And जो lone pair है, that should be in the इक्वेटोरियल. position. Because equatorial पे एंगल ज्यादा होता है ना 120 डिग्री. हाँ तो LP या LP-BP का रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से लोन पेयर विल बी प्रेफर्ड इन द इक्वेटोरियल पोजीशन. ठीक है, अब जब हम sp3d की बात करते हैं तो आई कैन राइट इट एज sp2 plus pd. तो sp2 मतलब the 3 orbitals which are lying in the same plane and pd मतलब ये एक्सियल वाले orbitals. तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एक्सियल को प्रेफर करता है और जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पे डालना होता है हमेशा. ठीक है, मतलब SOF4 में ऑक्सीजन को कहाँ रखोगे? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल. Oxygen and fluorine में which is more electronegative? फ्लोरीन. So oxygen will occupy the इक्वेटोरियल. equatorial with 2f over here and 2f ऊपर और नीचे. यस. ठीक है, तीसरा है COF2. दिस इज सिमिलर टू कार्बोनाइल क्लोराइड फॉस्जीन. हाँ यस. तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो Cl Cl sp2 प्लेनार. ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इक्वेटोरियल FSF बॉन्ड एंगल इन SOF4 ये वाला
और इस एंगल की बात कर रहे हैं, दिस एंगल है ना, FSF इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल इन SOF4 will be less than FSF बॉन्ड एंगल इन SF4। दोनों में रिपल्शन अलग अलग हो रहे हैं ना सर, तो हो सकता सर है लोन पेयर की वजह से रिपल्शन एफ और एफ में मतलब एफ और एफ का कम होगा सर, कम होगा। हाँ, तो ये तो बड़ा ये वाला होगा, एंगल, ये बड़ा वाला होगा, एंगल बड़ा होगा, बड़ा होगा ना, Repulsion। कम रिपल्शन होगा तो बड़ा एंगल होगा। ओवर एफ में ज्यादा रिपल्शन होगा तो छोटा एंगल होगा ना। लोन पेयर पर अरे पर लोन लोन पेयर पेयर ज्यादा will repel the रिपेल bond करेगा pair ना। more ना, lone pair हाँ always वही occupy greater space हाँ एफ और एफ in का three कम होगा बॉन्ड dimension, एंगल। so this two bonds will shrink more in comparison to this two bonds। यस मतलब ये एंगल लेट्स से थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, थीटा 1 क्या लेस देन बोलेंगे थीटा हम, 2 थीटा 1 will be लेस देन। less than theta 2। और फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, इक्वेटोरियल FSF बॉन्ड एंगल will be less, मतलब थीटा 2 लेस होना चाहिए, तो रॉन्ग है। स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। हम्म, आगे, hybridization state of sulfur in SF4 and SOF4 False, will be false. different, obviously False, not, false. because both are sp3d। The bond angle of FCO will be less than 120 degree in molecule COF2। किधर है सीओ, किधर बनाया गया? CO हाँ, इधर। यही है, CO F2 नहीं, CL2 ही है। CO, अच्छा मैंने COCl2 बना दिया, हाँ F2 है वो, ठीक है दिस इज सर। F। हाँ, तो will the oxygen का double bond affect the bond angle of this? यस sp2 प्लेनर के Yes, हिसाब से तो 120 डिग्री है, हाँ, लेकिन कार्बन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन बाय अ डबल बॉन्ड ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाँ। यहाँ ज्यादा होगी, तो ये हाँ, एंगल sure। 120 से थोड़ा कम होगा। कम होगा, मतलब इट इज लेस देन 120 डिग्री, ये less करेक्ट than। स्टेटमेंट है, तो Correct आंसर है। सी है। अच्छा Yes, डी भी sir. देख लेते हैं, द एक्सियल FSF एंगल इन SF4 इज 180, ये वाला No, एंगल sir। ना हाँ, एक्सियल नहीं, SF sir। हाँ जब वो तो है एक्सियल होना चाहिए 180 Axial, होना हाँ। चाहिए, चाहिए, पर लोन पेयर की वजह से लोन कम पेयर की होगा, वजह से ये भी 180 से थोड़ा कम होगा। कम हो जाएगा। Here exact 180 degree कब होता, when all the atoms are occupied in the और जब लोन पेयर sp3d, नहीं होता। और जब लोन पेयर नहीं होगा, मतलब सारे पोजीशंस SF6 occupied ना है। सर मतलब SOF4 में होगा क्या 180? क्या, नहीं FSF नहीं नहीं, इधर FSF भी नहीं नहीं होगा। होगा। सेम ये सेम डबल एटम होगा तभी होगा बॉन्ड, ना। डबल बॉन्ड जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो फिर चलता, एंड हाँ एटम्स पर अगर अच्छा ठीक है। सिमिलर होगा तो। हाँ द बेस्ट अच्छा एग्जांपल okay, PCl5 इज अ परफेक्ट sp3d, इसमें Yes, जो yes. एंगल्स होंगे ना वो 120 डिग्री और हम्म। 180 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एटम भी सिमिलर है और परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन है, Okay. ठीक है। इस केस में देखो ना, ये डबल बॉन्ड आपने बोला कि एंगल अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी अफेक्ट होगा ही ना, तो ये परफेक्ट 180 डिग्री नहीं होगा, Yes, sir. ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि PF2Cl3 में F किधर होगा और Cl किधर होगा, आया हुआ क्वेश्चन है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऊपर नीचे Axial। पोजीशन। इसमें होगा क्या 180 सर FPF बॉन्ड? हाँ इसमें होगा, बिकॉज यहाँ रिपल्शंस नहीं होंगे ना, इसमें होगा। और अगर PF3Cl2 है तो F होगा। एक F यहाँ पर आ जाएगा, हाँ इसमें 180 होगा क्या? नहीं, हाँ, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एंगल इज खाली अफेक्टेड बाय द डबल बॉन्ड, मल्टीपल और लोन बॉन्ड पेयर। और द लोन पेयर। ओके ठीक है। अच्छा इसमें पूछा गया था डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का, किसका? पोलर है कि नॉन पोलर है, ये वाला जीरो जीरो PF2Cl3। जीरो सर जीरो जीरो। जीरो जीरो। इसका म्यू जो है वो जीरो होगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बिकॉज डाइपोल्स इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। यस और अगर PF3Cl2 कंसिडर करो तो यहाँ पे एक F आ जाएगा, पोलर आ जाएगा और म्यू नॉन जीरो हो जाएगा। यस करेक्ट अरेंजमेंट एंड डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट, a substance A decomposes in solution following the first order kinetics. Flask 1 contains 1 liter 1 molar solution of A and flask 2 contains 100 ml 0.6 molar solution of A. After 8 hours, the concentration of A in flask 1 becomes 0.25. What will be the time for concentration of A in flask 2? पहले इक्वेशन से K मिल जाएगा, मोलार। पहले इक्वेशन से K मिलेगा और दूसरे में K सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे। K ढूंढने की जरूरत है क्या? नहीं भाई डिवाइड कर देंगे भाई।
मतलब k for the first Half-life process is ढूंढेंगे equal ना? to k for the second हाँ process. वही क्यों वही ढूंढना वही है? हाँ वही हाफ लाइफ की divide जरूरत कर ही लो। नहीं है, ढूंढ सकते हो हाँ, बट जस्ट लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं. नहीं मतलब वही हुआ सर, वही हुआ, 8 घंटे बाद ढूंढने की 1/4 जरूरत हो नहीं रहा है, है। डिवाइड तो करेंगे मतलब हाफ वही लाइफ होगा। 4 घंटा हो गया और उसके अंदर हाँ हाफ लाइफ सेम है, बराबर है। हाफ लाइफ सेम है क्योंकि k सेम है ना, बोथ आर फॉलोइंग द हाँ, फर्स्ट हाँ। ऑर्डर काइनेटिक्स. यस यस सर। तो यहाँ पे 1 by time, 1 by time is 8 for the first process into log to the base 10. 2.303 भी कैंसिल हो जाएगा ना दोनों तरफ, वो नहीं हाँ लिया है. सर, इनिशियल कितना है फ्लास्क 1 में? कंसंट्रेशन 1 1 मोलार है, 1.25 और वो कितना हो रहा है? 0.25 0.25. और यहाँ पे टाइम पूछा है सेकंड फ्लास्क के लिए, और इसका इनिशियल कितना था फ्लास्क 2 का? 0.6 0.6. वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना बिफोर आफ्टर. हाँ हाँ 100 ml और 1 लीटर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे. और ये 0.3, ये log 2 हो जाएगा, log 2 तो ऊपर जाएगा तो 4, 4 मतलब 4 2 hours by sir, 4 4 equal hours, to sir. 1 by t. 4 hours गड़बड़ किया क्या? सो नहीं सर, वो 2 log 2 होगा 2 सर। by 8, sorry, 2 by 8. So t will be equal to 4 hours. हाँ तो मैं खाली बोल रहा था इसमें हाँ. अगर थोड़ा देख के अपने को अगर मालूम पड़े कि थोड़े मतलब कंसंट्रेशन 1/4 हो रहा है 8 घंटे के अंदर, तो डायरेक्टली 4 आवर्स उसका हाफ लाइफ में हाफ जाएगा. लाइफ 4 hours वही 0.3 से 0.3 के अंदर भी 4 आवर्स हो जाएगा. 4 hours लगेगा, वो हर बराबर समय है। वैलिड नहीं है, पर ये थोड़ा देख के मालूम पड़ ये जाए. थोड़ा हाँ वही इसमें हो जाएगा। कर सकते हैं. हाँ okay. इक्वेशन से वापस कंफर्म कर लेने का. इस तरह अगर कर भी रहे हो ना तो इट्स ओके, बट जस्ट कंफर्म इट विद द इक्वेशन आल्सो. क्रॉस कंफर्मेशन हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा मार्क करने में, और कुछ नहीं. Okay, sir. Which of this is most stable? NF3, NCl3? NF3 because अगर size of the halogen बढ़ेगा तो molecule unstable होगा, और stability घट NCl3 is जाएगा. explosive, NBr and NiTr don't exist. Perfect. don't exist। Okay, section 2 multiple वाला है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट. The correct statement regarding various types of molecular speeds are molecular speeds. Increasing temperature increases the fraction of molecules having most probable velocity. अरे ये उसका है ना, मैक्सवेल इक्वेशन है ना सर ये तो। Maxwell इक्वेशन से distribution. आता है। Maxwell अरे वो इक्वेशन बहुत गंदा है, पर इक्वेशन की जरूरत नहीं है, केम में तो है ही नहीं इक्वेशन. किधर भी है ही नहीं, फिजिक्स में भी नहीं है। फिजिक्स में भी नहीं है। फिजिक्स में नहीं है. नहीं है। ओके. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं. dn by d lambda वाला शायद से सब बोला। What is plotted on the y-axis? नंबर n ना n. dn by d lambda सर। n मतलब क्या? number of atoms, number of molecules। Number of molecules नहीं, fraction of molecules हाँ। So Maxwell Boltzmann distribution curve is the graph of fraction of molecules versus the speed. ठीक है. यहाँ पे लेट से ये वाला एक कर्व आ रहा है. सर क्या है, सिंगल करेक्ट है क्या? सिंगल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है? मल्टीपल. अच्छा. अब T1 पे इस तरह का मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है जहां पर दिस पीक इंडिकेट्स द हाईएस्ट या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. ये MP है. ठीक है. और एक चीज, द एरिया अंडर द कर्व इंडिकेट्स व्हाट? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. वेरी गुड. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब टेम्परेचर का रिलेशन यहाँ पर किस तरह से होता है? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, हाई टेम्परेचर विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. स्पीड बढ़ता है. So what will happen to the most probable speed? The VMP speed will increase. But
फ्रैक्शन घटेगा ना, fraction of molecules having that most probable घटेगा speed will डिक्रीज decrease. ये बहुत important relation है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ता है एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स घटता है. क्यों? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, ये जो T1 पे स्पीड है, टेम्परेचर बढ़ने पर the speed will increase, so peak will be obtained somewhere over here, but the area under the curve which represent the total number of molecules वो तो सेम ही रह रहा है ना, सेम ही रहने वाला है. हाँ, तो वो सेम रहेगा, तो ये जो ग्राफ है वो थोड़ा पैटर्न हो जाएगा कुछ इस तरह से. तो अब देखो, इनिशियली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जब T1 था तो ज्यादा था. अब जब टेम्परेचर T2 है which is higher temperature greater than T1, the fraction of molecules is lesser but the most probable speed is higher. This is the conclusion of Maxwell's curve. ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं, increasing temperature increases the fraction of molecules. No. बी सही है. Increasing temperature increases most probable. Yes. Now, in a sample of gas at a given temperature, molecules with extremely low and high speeds are less. Right है sir. Yes, extremely low और extremely high speeds के साथ जो molecules होते हैं वो कम होंगे. ठीक है, average speeds के साथ ज्यादा होंगे molecules. At the same temperature, lighter gas having narrow distribution of molecular speeds than heavier gas. हाँ सर, क्योंकि U उनका ज्यादा रहेगा ना, √2 RT/m. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है ना. हाँ, तो मोल जिसका कम होगा तो उसका यूज ज्यादा होगा. स्पीड कैसा होगा लाइटर गैस का? हाँ, ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. ऑब्वियसली लाइटर गैस विल हैव मूव विद द पीक ऊपर, उसका ग्राफ का पीक ऊपर आएगा. ज्यादा होगा तो व्हाट कैन यू टॉक अबाउट द कर्व? विल इट बी ब्रॉडर या नैरो? ऊपर आएगा. नैरो सर. ग्राफ का पीक ऊपर आएगा तो नैरो होगा. कुछ इस तरह से आएगा. बट एरिया अंडर द कर्व सेम रखने के लिए अगर मैं किसी दूसरे गैस की बात करूं तो ब्रॉड होगा पर छोटा. तो ये वाला पीक जो है वो ज्यादा मोलर मास के लिए आ रहा है या कम? कम मोलर मास सर. कम मोलर मास का नैरो होगा. यस सर. सो ये लो मोलर मास और ये हाई मोलर मास. So lighter gases will have narrow distribution of molecular speeds than heavier gases. Y-axis पे इसमें speed plotted है क्या? number of fraction of molecules है ना y-axis पे दूसरे कर्व में. क्या? ऊपर वाले कर्व के अंदर x और y-axis पे क्या है? Fraction of molecules वही है ना, fraction of molecules versus the speed. अच्छा वही है ना. ठीक है. ठीक है. ओके. हाँ सर. ये भी करें. Next, the compound should be used to prepare glycine and beta alanine by GPSR. अरे हाँ सर. तो मतलब CH2 आएगा. कन्वर्जन क्या था? अल्काइल हैलाइड एज द सबस्ट्रेट कन्वर्टेड टू NH2. तो जो भी R सर बी है वही R ये होगा. सर बी. मुझे पहले बताओ ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है? CH2 NH2COOH. NH2 CH2 COOH. H2N CH2COOH. उससे B मिल जाएगा. तो अगर मुझे ग्लाइसिन प्रिपेयर करना है तो मुझे अल्काइल हैलाइड का R ये रखना पड़ेगा. हाँ. मतलब ऑप्शन बी. दूसरा बीटा एलेनाइन क्या होता है? एलेनाइन ये ना RCH3. अगर बीटा है तो क्या होगा सर? हाँ, अभी बीटा एलेनाइन डिफर करता है. बीटा एलेनाइन मतलब बीटा अमाइनो एसिड बोलते हैं इसको. बीटा अमाइनो एसिड मतलब if I consider, listen, COH, this is my alpha, this is my beta and this will have NH2. हाँ, तो C पे CH2. और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं होता है. Though the name is alanine but
though the name is alanine but it doesn't have a methyl substituent. अच्छा हाँ, ये कंपाउंड है बीटा एलेनाइन. मतलब यही है क्या? हाँ यही है, बीटा अमाइनो एसिड है सीधा सीधा, सिंपल स्ट्रेट चेन बीटा अमाइनो एसिड विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट. तो इसका जो R है वो CH2CH2COH होगा, मतलब जो सबस्ट्रेट इसका होना चाहिए वो C होना चाहिए. ठीक है, तो ध्यान रखना एलेनाइन मतलब H2NCHCH3COH with a methyl substituent. बट बीटा एलेनाइन मतलब बीटा अमाइनो एसिड. ये एलेनाइन वर्ड कंफ्यूजिंग है, बट ये स्ट्रक्चर जब देखा तो इट इज लाइक दिस ओनली. ओके, इन विच ऑफ दिस कंपाउंड्स नाइट्रोजन कैन बी एस्टिमेटेड बाय डुमास मेथड? हाँ, डुमास मेथड में सब ये नाइट्रोजन होना चाहिए ना सर. खाली उसके लिए जेल्डाल के लिए वेरी गुड. डुमास में सब चलता है. डुमास इज favorable method because it does not have any exception related to the nitrogenous compound. अच्छा, क्यों था ऐसा? Dumas method में जो organic compound containing nitrogen है that gets converted to N2 gas. वॉल्यूम से करते हैं. But in Geldahl method एसिड का इक्विवेलेंट से करते हैं ना. हाँ, फिर इसको न्यूट्रलाइज भी करते हैं. The nitrogen containing organic compound is converted to ammonium salt. हाँ, अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, बट अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड तो अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है. इसलिए यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड्स नहीं देते जेल्डाल, ये ध्यान रखना. जेल्डाल इज नॉट गिवन बाय अजो कंपाउंड्स, नाइट्रो एंड रिंग कंपाउंड पाइरिडीन. यस, मतलब अगर ये क्वेश्चन जेल्डाल का होता तो पाइरिडीन नहीं देता, नाइट्रो नहीं देता, पायरोल भी नहीं देता ना सर. सो पायरोल नहीं देता. पायरोल भी रिंग कंपाउंड है तो पायरोल भी नहीं देगा. पाइरिडीन या पायरोल जो रिंग कंपाउंड्स हैं वो नहीं देते जेल्डाल मेथड. बट ड्यूमास मेथड इज गिवन बाय ऑल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंटेनिंग नाइट्रोजन. ठीक है. अच्छा, डुमास का फॉर्मूला 28/22400 into volume upon mass of compound into 100. Good. 28/22400 into the volume of nitrogen at STP. This is important. Volume of nitrogen at STP. अब यहाँ पर ना डुमास में जनरली क्या होता है, जो प्रेशर दिया जाता है that is given for moist gas. प्रेशर जो दिया जाता है वो मॉइस्ट गैस का दिया जाता है, तो हमें प्रेशर ऑफ ड्राई गैस को कैलकुलेट करना पड़ता है. कैसे? इट इज कलेक्टेड ओवर वाटर ना, तो वाटर का भी प्रेशर आता है, तो हमें वाटर का सबट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं वो सैचुरेटेड ना, एक्वियस टेंशन. पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर को एक्वियस टेंशन बोलते हैं. तो डुमास में जब भी एक्वियस टेंशन दिया रहेगा ना, तो जो भी मॉइस्ट गैस का प्रेशर है उसको सबट्रैक्ट करो फ्रॉम एक्वियस टेंशन, देन यू गेट द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस. एंड इफ दिस इज गिवन एट सम अदर कंडीशन अदर देन एसटीपी, देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, P1 equal to P2 upon T2. ये दो चीज याद रखना डुमास के लिए, बस और कुछ भी नहीं है. फिर यहाँ पे आता है वेट ऑफ द ऑर्गेनिक सैंपल और इनटू 100. दिस इज योर ड्यूमास का फॉर्मूला. ठीक है. ओके, नेक्स्ट अगर हम जेल्डाल की बात करें तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला था 1.4 into milli equivalent of mass of the compound. इनटू 100 आएगा कि नहीं? नहीं आएगा. नहीं इसमें नहीं आता. नहीं आता. मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अपॉन द वेट ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल. तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड में हम क्या करते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू बेसिसिटी, दैट इज एन फैक्टर. ठीक है. चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, खतरनाक है थोड़ा. देखो, a black mineral A in solid state is fused with KOH and KNO3 and the mixture extracted with water to get a green colored solution B.
On passing CO2 gas through the solution, the color changes to pink and a black residue. Which of the cobalt following is related are है? correct? तो कोबाल्ट रिलेटेड है क्या? Cobalt related? Black अरे mineral. अरे पर ग्रीन और पिंक तो कोबाल्ट से रिलेटेड है ना? और कोई मेटल से सल्फाइड होगा ना? रिलेटेड है? एफ ही होगा या तो ग्रीन से रिलेटेड। और एक बार इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू रिएक्शन। एमएन हो सकता है सर, मन को पिंक हाँ एमएन एमएन हो सकता है, MnS हो सकता है ना, ब्लैक मिनरल MnS होगा शायद। एमएन हो सकता है। A is a black mineral in solid state fused with alkali and potassium nitrate, and the mixture is extracted with water to give a green colored solution, which is B. Green solution एमएन हो सकता है सर। हाँ B. ऐसा कौन सा मिनरल है या मेटल है जो ब्लैक से ग्रीन का कन्वर्जन देता है? कोबाल्ट ग्रीन देता है क्या? नहीं सर, एमएन हो सकता है सर। एमएन सर MN पिंक हो Yes. सकता है। Mn का कौन सा मिनरल ब्लैक है एमएन जिसको हम KOH और KNO से Pyrolusite रिएक्ट ना? करके ग्रीन सोल्यूशन बनाते हैं? ग्रीन ये होगा ना, K2MnO4 इज ग्रीन ग्रीन ना? इज डेफिनेटली K2MnO4 K2MnO4 और ब्लैक MnS मिनरल MnO2 पाइरोल्यूसाइड है। MnO2 हाँ MnO2 हाँ ये तो हाँ रिएक्शन अपना स्टैंडर्ड रिएक्शन है तो। उधर ठीक है। standard reaction। आगे कुछ क्योंकि और MnO4 स्टेटमेंट दिया है कंफर्म करने के लिए। लेट्स सी। सॉरी ऑन पासिंग CO2 थ्रू द सोल्यूशन, कौन से सोल्यूशन से बात कर रहे हैं? B ग्रीन सोल्यूशन। तो B से CO2 पास किया है and the color changes to pink with a black residue. एक पिंक कलर का कंपाउंड आता है एंड एक ब्लैक रेसिड्यू CB बनता है। KMnO4 होगा ना पिंक। हाँ। Which of the following is are correct? तो हाँ। ब्लैक आपने क्या बोला? पाइरोलूसाइड है कि MnO2? केटो? हाँ पाइरोलूसाइड ना। MnO2 So now अगर आपको याद रहेगा तो पाइरोल्यूसाइड से हम पोटेशियम Oxidized- परमैंगनेट को जब प्रिपेयर करते हैं हाँ तो फर्स्ट स्टेप वाज फ्यूजिंग विद अल्कली alkali and हाँ। reacting with the oxidizing agent yes sir। Yes, sir. MnO2 in alkaline medium fused with an oxidizing agent या KNO3 या KClO3 ले सकते हैं Yes, या फिर ओजोन भी ले सकते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो this converts into K2MnO4 which is a green solution. Manganate. Now this green solution of K2MnO4 that is MnO4 minus 2 is MnO4 passed with oxidized। CO2। तो ये पिंक कलर्ड सोल्यूशन जो है वो MnO4 माइनस की बात कर रहे हैं, पर्पलिश पिंक होता है। हाँ सर। अच्छा, what is this reaction of permanganate to manganate? एंड एक ब्लैक रेसिड्यू भी बन रहा है। MnO और कौन सा ब्लैक होता है? एक्वियस सोल्यूशन है। MnO2 ही होगा शायद। अच्छा, what is the medium of the reaction when there is Sir, CO2 acidic. and water? Acidic. Can you think about something when Salt। manganate is reacted in acidic medium? अरे +2 में चेंज होता है ना? Disproportionation +2 में चेंज होता है। Disproportionation ना? Disproportionation का एक बहुत important reaction। हाँ MnO2 ही लग रहा है। हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन। disproportionation में क्या मिलता है? MnO4 MnO4 minus and and MnO2 plus H2O। अरे सर लग रहा यहाँ था पर +6 वाला जो है वो प्लस। हाँ, अरे MnO2 लग रहा था पर फिर वो लगा A और C सेम क्यों होगा तो फिर निकाल दिया। वो देखो ऑप्शन में दिया हुआ है हिंट। हाँ B तो कई बार ऑप्शन को देखना पड़ेगा आपको, अगर क्वेश्चन से स्ट्राइक नहीं होता है तो। हाँ स्ट्राइक हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऑप्शन से कहीं ना कहीं हिंट मिल जाता है। देखो हाँ अब ऑप्शंस को देखते हैं। द पिंक कलरेशन इज डीकलराइज्ड बाय एसिडिफाइड फेरस सल्फेट। MnO4 माइनस हाँ होता है ना। पिंक कलर MnO4 माइनस का है। FAS सो कलरलेस तो बनता है ना, कलरलेस। फेरिक से फेरस से फेरिक ऑक्सीडाइज होता है
और फेरेसिफेरिक फेरेसिफेरिक होता है, और ये Mn+2 MnSO4 ग्रीन होता है ना, ये ग्रीन MnSO4 कलर में कन्वर्ट होता है। ग्रीन, हाँ सॉरी ग्रीन सिर्फ ग्रीन H2S में ब्राउन मिलता है। हाँ नहीं नहीं, वो K2Cr2O7 में हाँ, वो होता है, K2 जिसमें हाँ, क्रोमियम का +3 ग्रीन कलर देता है। हाँ इसमें तो डीकलराइज ही होगा, ये बराबर है। परमैंगनेट हाँ, डीकलराइज हो decolorize। जाता है। ये Mn+2 right है। बहुत ही लाइट बराबर कलर्ड राइट है। रहता है, जो ऑलमोस्ट कलरलेस बोल सकते हैं। तो ये जो पूरा सोल्यूशन है वो कलरलेस होता है, Colourless। मतलब पिंक कलरेशन इज डीकलराइज्ड, A is correct, B is correct. तो ये करेक्ट है, ठीक है। हम्म, ब्लैक रेसिड्यू इज सेम एज A। Yes sir. हाँ, yes when O3 is passed through the green solution, Yes sir. स्पॉन Yes, चिल्ला yes। रहा है, किसके घर पे चिल्ला रहा है? When O3 is passed through the माहिरा। green color, solution changes to pink। Yes sir. वही तो है। मतलब MnO4-2 हाँ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, सही हो तो जाएगा। है। ऑक्सीडाइज लिखा होगा ही तो तो है। MnO4- देगा, हाँ सर। मतलब ये भी sir। सही है। And shape of the anion of pink substance is tetrahedral. Is MnO4- tetrahedral? Yes sir, yes sir, Yes, yes sir, Both sir। are yes, sir। tetrahedral. हाँ Yes, हाँ sir। right। दोनों ही tetrahedral होते हैं, मतलब चारों ही Yes। करेक्ट ऑप्शन है। A B C D Yes, करेक्ट। ये बेस्ट होता है सर, कुछ भी मार्क करो मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, पर इसमें एक भी गलत हुआ तो 0 हो जाता है ना, नेगेटिव हो जाता है। मैंने ABCD राइट होता है ना, तो क्या? गलत चांस ही, ABCD राइट है तो फिर गलत होने का चांस ही नहीं सर। हाँ, मतलब आपने अगर एक आधा मार्क नहीं किया तो पार्शियल तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। हाँ बस। ऐसा डर लगता है करने। डर के आगे थोड़ा जीत है। क्लियर नहीं है। हाँ, ये क्लियर नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। नेफ्थलीन विद आयोडो सब्स्टिट्यूटेड एट द पोजीशन एडजेसेंट टू द ब्रिज सर आपका कार्बन। ये तो आवाज दिख रहा बहुत है। क्रैक हो रहा है। हेलो, अभी? बोलो सर। हाँ सर। हाँ, नेफ्थलीन कंपाउंड है विद आयोडो सब्स्टिट्यूटेड, और सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। एक एक करके हम सीक्वेंस को देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव अ नेफ्थलीन कंपाउंड, और यहाँ पे आयोडो है, ठीक है। आगे दिया हुआ है Mg एंड ड्राई ईथर। 82 क्या होगा? Mg ड्राई ईथर, MGI ग्रिग्नार्ड बनेगा। ग्रिग्नार्ड अरे ग्रिग्नार्ड। फिर इपॉक्साइड दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड विद इपॉक्साइड, CH2 और वो क्या बोला था? OH। OH, हाँ CH2OH। When खुल जाता है। RMGX reacts with the epoxide, then With it gets टूट के converted to a CH2 primary alcohol with increase in the carbon atoms। यस यहाँ पे CH2 CH2 OH आ जाएगा, OH यस। ठीक है। ये अपना कंपाउंड A है। A है। फर्स्ट हो गया क्वेश्चन है। A पूछा है, व्हाट इज A? सी 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 C C नहीं है, C ध्यान नहीं से B देखो। B पुश पोजीशन देखो। हाँ सॉरी अरे हाँ ओके। हाँ, तो ये B है ना B होगा। सर? B है ऑप्शन हाँ। B। अब A से B में देयर आर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन व्हिच इज गिवन। पहला है PbR3, BR हो is जाएगा। treated with PbR3। BR यहाँ पे Br हाँ आएगा, BR आएगा। ये then NaCN है। NaCN है, NaCN। हाँ तो CN बन जाएगा वो, और फिर साइनो आएगा, COH बन जाएगा। वो और फिर हाइड्रोलाइज किया। एसिडिक हाइड्रोलिसिस COH और फिर COH और फिर डीकार्बोक्सिलेशन हीट भी क्या है? डिकार्बोक्सिलेशन। क्या? डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा ना, हीट हाँ, भी क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हीट करके? प्रोपाइल आ CO2 जाएगा। निकलेगा। CH2 CH2 इथाइल H इथाइल आएगा आएगा भाई, ना, इथाइल आ जाएगा। इथाइल ही आएगा हाँ प्रोपाइल। सॉरी CH2CH3 आएगा खाली सॉरी। हाँ इथाइल है, नेफ्थलीन पे इथाइल। There is a naphthalene compound with ET या CH2 CH3 हो जाएगा। So could you explain COOH के बाद वाला हीटिंग पे कैसे इथाइल हुआ? हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा ना, और डीकार्बोक्सिलेशन में COH will change to H, CO2 निकल जाएगा। अच्छा बट आगे B से C में देखो, आपको पहले थायोनाइल क्लोराइड दिया हुआ है। अच्छा तो हाँ, तो वो COH का रिएक्शन है ना, पर एक्चुअली हाँ, तो अभी अगर SOCl2 दिया है तो तो इट इज COCl रिएक्शन विद हाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब तो यहाँ पे वो डीकार्बोक्सिलेशन आपको नहीं होगा। सोचना है। नहीं होगा, फालतू का दिया हीट यार। वही देखिए हाँ, कंफ्यूज एक तरह से कंफ्यूजन है, बट आगे का सीक्वेंस मेक्स इट क्लियर।
तो यहाँ पे COCl असाइल क्लोराइड बन जाएगा। हाँ फिर SnCl4 और हीट, रिडक्शन, SN इसका रिडक्शन, विच फंक्शनल ग्रुप C double bond रिड्यूसेस होना। SN? CO नहीं, ये कीटोन नहीं है, अरे असाइल असाइल क्लोराइड है। असाइल अरे क्लोराइड। हाँ असाइल sorry क्लोराइड में sorry। हमेशा Cl को ध्यान रखना है, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप CH2 बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, दिस Cl विल बी अ लिविंग ग्रुप, तो इट कैन गो अवे विद द एच ऑफ एनी ऑफ द एडजेसेंट कार्बन एटम एंड फॉर्म अ साइक्लिक रिंग। ओके हाँ ठीक है, हाँ, तो CO का बराबर। तो अब यहाँ पे दो पोजीशन है, एक तो ये पोजीशन है जहाँ से H निकल सकता है, और एक पोजीशन है जहाँ से H निकलेगा। उधर से ब्रिज का ब्रिज H से निकलेगा कि निकलना एडजेसेंट का? नहीं, ब्रिज का मुश्किल है ना। ब्रिज का नहीं निकलेगा। ब्रिज का नहीं, ब्रिज का रिएक्ट नहीं होता। तो SnCl4 के साथ HCl निकल जाएगा, हाँ, और HCl निकलने पर यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होगा विच विल इम्पार्ट स्टेबिलिटी। CH2CO। तो यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा CH2, देन C डबल बॉन्ड O, और ये ज्वाइन हो जाएगा इस कार्बन के साथ। कितना मेंबर्ड रिंग बना? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। सर रिंग फेवरेबल है इसमें, 5 हाँ, मेंबर्ड। हाँ पाई ऑल्टरनेट पाई का 5 रेजोनेंस नंबर मिल पे रहा है, चलता है रे। पाई ऑल्टरनेट पाई का रेजोनेंस है। ऐसा भी है। अब इसके रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन था, फॉर्मेशन ऑफ B थ्रू द अटैक ऑफ फर्स्ट टू रिएजेंट्स इन्वॉल्व रिस्पेक्टिवली कौन सा मैकेनिज्म? पीछे का सर एक सेकंड। फॉर्मेशन ऑफ B में PBr3 का रिएक्शन था और NaCN का रिएक्शन था। SN1 है और PB वो SN2 है। NaCN SN2 है ना। PBr3 SN1 है और NaCN SN1 SN2 है। SN2 है। एक सेकंड सर, SN1 सबस्ट्रेट को देखोगे ही नहीं क्या तुम लोग? SN1 क्यों होगा सर भाई? SN2 होगा ना। कौन सा सबस्ट्रेट पे अटैक हो रहा दोनों है? SN2 हाउ कैन होगा। यू डिसाइड विद द न्यूक्लियोफाइल? हाँ सॉरी, SN2 होगा दोनों। SN2 CH2 और Br था ना अपना, प्राइमरी दोनों होगा। SN2 बराबर। तो यहाँ पे प्राइमरी सबस्ट्रेट है, मतलब दोनों ही SN2 SN2 होगा। SN2 ठीक है, ओके सर। और इसका थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली आया नहीं। थर्ड क्वेश्चन में C पूछा था, तो C ये रिंग वाला कंपाउंड है, दिस इज कंपाउंड C। ओके सर। A white substance A is a white substance reacts with dilute H2SO4 to produce a colorless gas B and a colorless solution C. So there is a white substance treated with sulfuric acid gives you colorless gas and colorless solution. Now the reaction between B and acidified dichromate K2Cr2O7 produces a हाँ, तो green ये क्रोमेट solution का, हाँ ये क्रोमेट के वो तो Cr+3 की वजह से ही होता है। and a slightly colored precipitate D. D is some colored precipitate. ठीक है, ग्रीन सोल्यूशन तो डेफिनेटली क्रोमियम +3 का है, Cr2SO4 थ्राइस का। वो 3 रिएक्शन जो होते हैं ना क्रोमेट ग्रीन जो देते हैं। लेट्स फर्स्ट राइट पूरा सीक्वेंस लिख लेते हैं। H2S SO2 वाला क्या? SO2 वाला ऑप्शन देखकर ही SO2 है क्या? वेट वेट B SO2 है ना? वेट हाँ जानम B रुको। SO2। द सब्सटेंस D जो कलर्ड प्रेसिपिटेट है, द सब्सटेंस D burns in air to produce E, and then E reacts with B to yield D and a colorless liquid. Now anhydrous copper sulfate is turned blue on addition of this colorless liquid. ये किसका टेस्ट है? anhydrous CuSO4 पानी का ना। हाँ, कंफर्मेटरी टेस्ट है, मतलब दिस कलरलेस लिक्विड इज कंफर्म। देखो जो चीज कंफर्म हो रही है, जस्ट राइट इट डाउन सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। Then addition of aqueous ammonia or NaOH to C produces first a precipitate. Addition of aqueous ammonia. Aqueous ammonia
याद आ रहा है? अरे ये ब्लू ब्लू कंडक्टिंग NaNH2 कंडक्टिंग so पैरामैग्नेटिक एंड ब्लू yes अल्कली मेटल्स का होता है ना वो Na और सबका Addition of aqueous ammonia or NaOH to C first produces a precipitate, पहले PPT बना रहा है, which dissolves in excess of the respective reagent. मतलब ये aqueous ammonia या NaOH excess लिया तो clear solution बनाता है each case. तो Ag का कुछ है क्या? Ag C क्या? C Ag से रिलेटेड है क्या कुछ? Ag से अब अगर आप देखोगे तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कटायंस को सोचो. पर Ag NaOH का रिएक्शन ज्यादा कुछ Ag common नहीं है ना? Ag प्लस Hg2 प्लस और Pb2 प्लस इसका रिएजेंट क्या था? NH4OH NaO डाइल्यूट HCl ना? डायोड HCl हाँ आज यहाँ फर्स्ट ग्रुप सॉरी फर्स्ट आज ग्रुप वो बराबर होंगे. first group. हाँ हाँ नहीं होगा फिर अगर एक्वियस अमोनिया पे जाओ तो NH4OH वाला ये है ना? ग्रुप 4 ना, ग्रुप 4 तो Zn वाला ग्रुप ना, Fe Zn वाला ग्रुप था. AlFe Cr नहीं, जिंदगी में कोई नहीं वाला ग्रुप. हाँ, वो वाला ग्रुप भी 4. हाँ वो Zn वाइट होता है और वो कोई नहीं तो ब्लैक होता है. ZnMn वाइट होता है, ZnMe वो Cr में ब्लैक होता है टू दूसरे है को. नहीं कोई नहीं, नहीं. ये 4 है. इनमें से ये दोनों वाइट है वाइट होता है, वाइट है कोई नहीं है तो और ब्लैक ये हो जाती नहीं है black है. जिंदगी. ब्लैक होते हैं. मतलब सी से इतना तो क्लियर है कि ग्रुप 4 की बात हो रही है. हाँ अब उन्होंने बस बोला है कि Zn ही सी होगा. एक्वियस अमोनिया और अल्कली दोनों से रिएक्ट कर रहा है. Zn सर, Zn. सो Mn तो रूल आउट हो जाएगा बिकॉज जिंक एम्फोडरिक है, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है. तो ए भी वाइट है. सी जो है वो जिंक का कोई कंपाउंड है और ए हाँ. ZnS होगा और AQZNS होगा. क्योंकि वाइट होता है वाइट जनरली ZnS इज वाइट नो लाइक थोड़ा गैस में. अब उसको समझने के लिए थोड़ा आगे देखो जिंक अरे का बी कोई देख लेते कंपाउंड. ना सर, बी 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 मिल से ना SO2 होगा ये सर, कलरलेस गैस हाँ है. ZnS SO2 ना. हाँ तो वो क्योंकि अपना रोस्टिंग K2Cr2 के साथ ग्रीन देता है SO2 और H2S ब्लैक देता है, और ब्राउन देता है, सॉरी H2S. हाँ ये हाँ, रोस्टिंग वाला रिएक्शन है ना ये. तो अभी ऑप्शन में देखोगे तो SO2 और H2S में से ही एक ऑप्शन है अपना SO2 E के लिए. हाँ, SO2 है सर. SO2 अच्छा, if I place SO2 over here with dichromate in acidic medium, you get a green solution of Green. Cr plus 3. Yes, Yeah. And what colored precipitate you get in case of SO2? Cr3SO4 ब्राउन. अरे हाँ. Cr2 नहीं SO2 के केस में आपका प्रोडक्ट क्या होता है? Cr2SO4 thrice and H2SO4. H2SO4 हाँ. कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है. H2S में अच्छा, chloride, sulfur, yellow. But if you take H2S, then Chloride, it हाँ, gives तो you sulfur, chromic sulfur. sulfate and sulfur का PPT. sulfur. yellow. yes सर पर H2S ऐसा था ना, H2S नहीं ब्राउन कलर ऑरेंज रेड सॉल्यूशन टू देता है. ग्रीन नहीं ऑरेंज रेड टू ग्रीन ही है. ऑरेंज रेड टू ग्रीन 3 में था, एक में ब्राउन था. वो आयोडीन अरे, में तो आयोडीन H2S वाले कलर्ड green PPT बोल रहा है ना भाई, कलर्ड PPT क्या? तो बोल रहा है. It is forming नहीं, a but colored solution- precipitate. आयोडीन में था जनाब वो ब्राउन कलर का. हाँ आयोडीन ब्राउन कलर का KI वाला केस है वो. हाँ ओके ओके. ठीक है, H2S मतलब SO2 तो यहाँ से रूल आउट कर सकते हो कि नहीं? H2S बराबर. सल्फर तो देता है. H2S with dichromate, D will be sulfur. हाँ. पीछे जाएंगे तो B हम मिल चुका है H2S. और अगर ये H2S है मतलब ये जिंक का सल्फाइड मिनरल होना चाहिए, यानी जिंक ब्लेंड. हाँ. नाउ जिंक ब्लेंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ZnSO4 और H2S बनाएगा. तो ये कलरलेस सॉल्यूशन Zn+2 का ZnSO4 कलरलेस होगा ना, हाँ. ZnSO4 होगा. हाँ. और अब ये ZnSO4 इन दोनों के साथ जस्टिफाई हो रहा है. हम्म. आगे देखते हैं. D जो है वो सल्फर मिला, सल्फर बर्न करेगा तो क्या देगा? SO2. SO2. अब ESO2 है और B जो है H2S है. कोई रिएक्शन याद आ रहा है? H2SO4. कोलॉइडल सल्फर का रिएक्शन ही है. हाँ हाँ फ्लावर्स ऑफ अरे हाँ सर वही ना नहीं नहीं, वाला नहीं. मिल्क ये ना. कोलॉइडल सल्फर मतलब SO2 will change to
S S एंड colloidal पानी मिलेगा. देखो वाटर तो ऑलरेडी हिंट था पहले से, हाँ एस तो पर D जस्टिफाई हो गया, वापस S है. हाँ सॉरी क्लियर. यस सर अब आगे एक और चीज दिया था कि एडिशन ऑफ एक्वियस मस्त अमोनिया question. टू C या NaOH टू C फर्स्ट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट. बताओ कौन सा पीपीटी बनेगा. ZnH3 twice. Zn ZnH3 4 sorry NH3 4. नहीं, पीपीटी कॉम्प्लेक्सेस पीपीटी नहीं होते हैं. हाँ क्लियर सोल्यूशन आई ये थिंक क्लियर सोल्यूशन जो है वो हाँ वो आपका ZnH हाँ ये होगा बराबर. कॉम्प्लेक्स. हाँ Zn PPT क्या होगा? एक्वियस सोल्यूशन हो या अल्कली, ये जिलेटिनस पीपीटी बनाता है. ZnOH ट्वाइस जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी होता है. ओह लेकिन अगर एक्सेस NaO, अब केस 1 एक्सेस NaOH में डिसॉल्व करोगे तो आपको ZnOH4 मिलेगा. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा ZnOH4 का. ZnOH4 हाँ उसमें ZnH3 twice मिलेगा. और अगर एक्वियस अमोनिया में डिसॉल्व किया तो अमीन कॉम्प्लेक्स ZnH3 twice. ZnNH3 4 4 टेट्राहेड्रल ट्वाइस Ag का Okay. होता है और 2 +2. minus +2. समझा. तो अब B और D पूछा था आपको. B तो H2S है और D सल्फर है, मतलब आंसर D है. D. मस्त Next question है. इतना पेशेंस नहीं होता है पेपर देते टाइम पे वो लेकिन इतना- ऑप्शन से ही आपको जाना पड़ेगा, वरना हाँ। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वो माइंडसेट में. हाँ और डाइक्रोमेट दिया था तो ये एक अच्छा हिंट था टू एनालाइज वेदर इट इज SO2 या H2S. एक बार ये आपने कंफर्म कर दिया कि कौन सा है, उसके बाद आई थिंक द सीक्वेंस वाज वेरी इजी. प्लस द अनदर हिंट वाज ग्रुप 4 को सोचना था. NH4OH बोला ना. हाँ क्वालिटेटिव NH3. एनालिसिस ऑफ कटायंस. तो डी ब्लॉक भी आ गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आ गया, डाइक्रोमेट के रिएक्शंस. डी ब्लॉक भी आ गया सब आ गया। चलो एक और क्वेश्चन है. ये सेम क्वेश्चन अरे में यार। पूछा है ये वाला. पैसेज सेम है, पैसेज है ये. अच्छा हाँ ठीक है. The Precipitate precipitate obtained by addition of aqueous ammonia or NaOH to C initially is dash, which dissolve in excess reagent to produce dash. सेम हाँ, इनिशियली same है. सेम Initially same है. डिफरेंट फिर भी बाद में Different complex. Initially different water complex. white gelatinous PPT ZnOH ZnOH twice का ट्वाइस सेम दोनों है. के लिए बनेगा बट अभी मैंने बताया कि जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो अलग है. डिफरेंट है दोनों केस में. Different. यस मतलब सेम एंड डिफरेंट वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे. दैट इज आंसर D. बी ऑप्शन बी. B. ठीक है.